Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. So here we are going to continue the topic which we have discussed in my previous video, that was the land reform system and the technological reform. So when we started our economic planning with the first 5-year plan, we started focusing over agricultural advancement, and because of, we all know that there was above 75% population was engaged in agriculture. So there was a need to provide better livelihood in the area of rural country. So in this way, the government has adopted few technology, few other type of reforms through which they were just trying to benefit the people belonging to agricultural sector. So in this way, we have discussed about the two phases of agricultural reform, in which the first was land reform, and we discussed the abolition of intermediaries, that is zamindari system, because of which 200 lakh tenants were come into direct contact with the government and they got the benefit as well. And the second was land ceiling. Afterwards, we are moving to the technological reforms, and in this category, we will discuss today green revolution. So here stay tuned with my channel so that you can get time to time notification as well. And also one more announcement I have for you all. I have joined Unacademy as well. So those who want to study Indian economy from throughout the first chapter as well as with daily quizzes, यानी कि मैं वहां पर आप सबके लिए डेली क्विजेस भी लेकर आ रही हूँ. वहां हम पहले चैप्टर्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा कंटेंट को समझेंगे विथ पिक्टोरियल इफेक्ट, विथ इमेजेस एंड मेनी मोर फैक्ट्स, एंड उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे विथ फ्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस which can come in the board examination. So साथ के साथ हमारी कई सारी प्रैक्टिसेस भी वहां पर हो जाएंगी. So I hope you all will like to join over there to me also. So you also join an academy there and refer to the same thing. You can join me with my name there, that is Dr. Akanksha Jain, and I'll take the classes every day from 3 to 4 p.m. So here if you need the systematic study of your Indian economy with quizzes, with puzzles and many more facts, so join me on Unacademy. So now, without wasting our more time, we'll start at this channel as well. Here we are going to discuss the agriculture sector, the technological reform. And when we are moving to technological reform, the first important point comes in the mind is green revolution. The green revolution program was the major program introduced by our government in between mid 1960. The exact time period is 1966. So this program was launched in the exact period of 1966, and as I told you already कि जो 1966 का पीरियड था, that was the end of our third 5-year plan. इसका मतलब थर्ड 5-year plan के एंड होते ही गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी. तो इस प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज, ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. कब स्टार्ट हुआ? 1966, मिड ऑफ 1960s, एंड The main fact is it is introduced by M.S. Swaminathan. इनकी पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा. He was known as the father of green revolution in India. Green revolution was started in Mexico by Dr. Norman. He was the agricultural scientist there in America. और उन्होंने ही ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और साथ में हमें हाई प्रोडक्शन मिल सके, मींस लार्ज लेवल का प्रोडक्शन मिल सके. तो ये जो कंसेप्ट था वो मैक्सिको में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डॉक्टर नॉर्मन, और वो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे. उन्हीं की वजह से हमें ये टेक्निक सीखने का मौका मिला. पर हमारी कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस किया था M.S. स्वामीनाथन ने, इसलिए इनको कहते हैं हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. इस टेक्निक का मेन फोकस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है इस टेक्निक का, ग्रीन रेवोल्यूशन का, दैट इज द यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स. So in this category, they were just focusing over the variety of seeds which can use. The motive behind the use of HYV seed just to increase the foster the growth of production in agriculture, and especially it was launched for the purpose of increasing the production of wheat and rice. And here the program was also launched as
इन द सीजन ऑफ खरीफ, यानी खरीफ सीजन में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, दैट टू स्पेशली इन व्हीट एंड राइस. And the motive behind such technology to adopt in Kharif season was the quick and large scale increase in short period. क्योंकि हमें पता है कि हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, तो उनको बेनिफिट देने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी थी. क्योंकि दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और जो हमारे 15 साल निकल गए इन द 3-5 ईयर प्लान, उसमें भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाए, प्रोडक्टिविटी लो ही रही. तो उसको फॉस्टर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया विद द व्यू ऑफ MS स्वामीनाथन. एंड दिस टेक्नोलॉजी स्पेशली नोन एज व्हीट रेवोल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम इंक्रीज हुआ था. तो ये इसके मेन पॉइंट्स है जिसको हमें पहले समझना है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1966. ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी. लाइक आई टोल्ड यू, देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी बार बार कि ज्यादा हो जाए ज्यादा हो जाए, इतने सारे प्रोग्राम्स लगाने के बावजूद लैंड रिफॉर्म लगाया, सब कुछ किया, कंसोलिडेशन किया, टेनेंसी रिफॉर्म किया, रेवेन्यू सेटलमेंट रिफॉर्म, जितने भी इश्यूज थे, लैंड सीलिंग यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन ईच एंड एवरी हैंड, तो वो सब करने के बावजूद प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था. तो उसको ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी की डिमांड आई. फिर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 75% पॉपुलेशन वाज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी प्रेशर था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना जरूरी था, यानी लोगों के लिए काम भी बढ़ाना था और प्रोडक्शन भी बढ़ाना था. फॉर दिस रीजन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. थर्ड वाज मॉनसून डिपेंडेंसी. एज वी ऑल नो, we were totally depending on monsoon, the rain which can come and support the irrigation facilities to the farmers, क्योंकि बिना पानी के कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो सकती. सो वी ऑल नो मानसून डिपेंडेंसी थी, पानी पे हमें भरोसा, हमें से भगवान के भरोसे हम एग्रीकल्चर कर रहे थे कि पानी हो जाता तो सपोर्ट मिल जाता था एंड ओवरऑल क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती थी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे फैसिलिटीज थी, वाटर की, रिवर हुआ, डैम हुआ, उन सब के सपोर्ट से इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया गया इन दिस टेक्निक. तो अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली, आप बार बार पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैम इतना सारा कुछ बता रही हैं, बट एक्चुअली टेक्निक है क्या. So here we have the meaning of green revolution. What is that technique? Like I told you, it focus on H5V seeds, the use of H5V seeds. तो वो अब है क्या, वो हमें समझना है. Meaning, it refers to the large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety of seeds, especially for wheat and rice. तो इसका सबसे बड़ा फोकस क्या था? The production of wheat and rice. And the target was the large scale of increase in production of agriculture sector or food grains resulting from the use of HYV seeds. इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में. इसका दूसरा नाम है पैकेज प्रोग्राम. तो 3 नाम मिल गए, ग्रीन रेवोल्यूशन, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज एंड पैकेज प्रोग्राम. तो ये 3 साइमल्टेनियस नेम है इसके. अब इसको पैकेज क्यों कहा गया? पैकेज कहने का इसका एक बहुत बड़ा कारण है. द रीजन इज जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मशीनरी. इसका मतलब सिर्फ HYV सीड के यूज करने से ये काम नहीं करेगा. मींस हम प्रोडक्शन का जो फोकस किया जा रहा था कि HYV सीड्स हैं, सिर्फ HYV सीड्स के यूज होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉस्टर नहीं होता. उसके लिए उनको और भी चीजें चाहिए थी साथ में. और वो और चीजें क्या डिमांड थी? इरिगेशन टेक्निक्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर यानी केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर वाज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हमें बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है. मोटिव भी यही था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन. हियर इट इज. तो लार्ज स्केल के प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए था. तो केमिकल फर्टिलाइजर. अब क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, तो हमें पेस्टिसाइड भी चाहिए टू प्रोटेक्ट the crops from the insects or the pest. तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ गई एंड द मशीनरी ऑफ कोर्स. इसलिए इस प्रोग्राम को हमने पैकेज कहा, क्योंकि इस सब में चीजों को मिलाकर ही हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते थे. सो दिस इज हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. फॉर दिस रीजन इन दीज मेन पॉइंट्स एंड दिस इज द मीनिंग for why it is called package program. So you just write down the whole, then we'll move to the next slide of green revolution.
So now we discuss about the phases of green revolution and what are the benefits and shortcomings of green revolution. तो इन सारी चीजों के बेसिस पे हम ये समझ पाएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से चैलेंजेस के साथ डिफरेंट फेजेस में चेंज होता रहा, जो जो प्रॉब्लम्स आई उस पे फिर हमने ध्यान दिया, एक्सपीरियंस लिया उन प्रोग्राम से, फिर उन पे और इम्प्रूवमेंट करके इस प्रोग्राम को और आगे रन किया. तो ये चैलेंजेस क्या रहे, ये फेजेस क्या रहे, ये अब हमें समझना है. सो हियर विल बिगिन द फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम विच वाज इनिशिएटेड इन 1966, मिड ऑफ 1960s में ये स्टार्ट हुआ था. तो इसके फर्स्ट 10 इयर्स में क्या काम हुआ, कैसा काम हुआ, वो हमें समझना है. हियर इट इज द फर्स्ट फेज मिड 1960 टू 70s. इसका मतलब ये हुआ कि 1966 से 75 तक की जर्नी में, यानी 10 साल में इस प्रोग्राम ने कितना प्रोडक्शन किया या कितना आउटकम लेकर के आए. सो हियर आर सम पॉइंट्स रिस्ट्रिक्टेड टू पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड यूपी. तो जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो इस प्रोग्राम का फोकस ऑफ अट्रैक्शन जो था, फोकस ऑफ अट्रैक्शन टू द लिमिटेड स्टेट, और वो लिमिटेड स्टेट कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड यूपी. एंड दीज स्टेट्स आर, वी ऑल नो, these states are belonging to wheat production, these states are belonging to high crop production. तो ये स्टेट ऑलरेडी रिच थे इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और यहीं पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया. फिर जो इश्यू आया दैट वाज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया. So this program, when it was launched in between this period, was focused on only wheat. This is why this period was known as wheat revolution, क्योंकि wheat का प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से इस पीरियड को हमने नाम दिया wheat revolution. Moving to the second phase. Second phase here is in between 1970s to 1980. Means this phase is now moving to the next 10 year. First 10 year 1966 to 75, next 10 year 76 to 85. तो उस पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या चेंज लाया गया? क्योंकि फर्स्ट फेज में मोर फोकस व्हीट पे था, सेंट्रलाइजेशन था, कुछ ही स्टेट पे था, जिसकी वजह से जो डिजायर टारगेट रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ. तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए फिर वहां पे चेंजेस किए गए. अब ये प्रोग्राम मोर स्टेट्स तक पहुंचा, यानी कि सिर्फ इन्हीं 4-5 स्टेट के अलावा कई और स्टेट में भी ये पहुंच गया. एंड इट वॉज ऑल्सो रीच टू मोर क्रॉप्स, यानी कि पहले इस प्रोग्राम में जो 10 साल में सिर्फ वीट पे फोकस किया, अब वीट के अलावा और क्रॉप्स पे भी फोकस करना शुरू किया. तो वो क्रॉप्स क्या थे? वीट, राइस, मिलेट्स, बार्ले एंड मेज. यानी कि वीट के साथ साथ राइस, मिलेट, बार्ले और मेज पे भी प्रोडक्शन पे फोकस करने लगे. फिर इस प्रोग्राम का जो थीम रखा गया दैट वाज डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ क्या था? सेंट्रलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वीट, बट नाउ डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज मीन्स कि इन स्टेट्स के अलावा और स्टेट में पहुंच गए और डिसेंट्रलाइज हो गए, और क्रॉप्स पे सिर्फ लिमिटेड नहीं रहे वीट पर, वीट के साथ अदर क्रॉप्स पे भी हम फोकस्ड हो गए. अब वो और क्रॉप्स जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ मींस हर स्टेट तक पहुंचने की कोशिश की गई, दैट वाज राइस, ऑयल सीड, पल्सेस एंड ग्रेन्स. बेसिकली इन 4-5 प्रोडक्ट पर ज्यादा, 4-5 क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस किया गया इन सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो दैट इज हाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम वॉज distributed among 2 phases in 20 years. Now we are going to discuss what were the benefits and shortcoming of this green revolution program. So first is here increase in production and productivity. We all know during the British period India was facing the problem of low productivity, low production. तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्रिएट किया जाए. तो मेन फोकस इंक्रीज इन प्रोडक्शन था. यहाँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, इसको लिख लेना जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह से चेंजेस आए. तो फर्स्ट मैं व्हीट और राइस पे ज्यादा डिस्कस करूंगी, क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन फोकस ऑफ क्रॉप्स जो थी वो व्हीट और राइस ही थी. तो व्हीट का प्रोडक्शन जो 10.4 मिलियन टन था, कब? 1960 में, राइट. तो व्हीट का प्रोडक्शन जो 10.4 मिलियन टन था 1960 में, वो पहुंच गया 55 मिलियन टन टिल 1990. So it has reached to 55 million ton to 1990. राइस प्रोडक्शन जो 36.6 मिलियन टन था वो पहुंच गया 74 मिलियन टन टिल 1990. तो दिस वाज द ड्रास्टिक चेंज.
which we have seen in the phase of green revolution कि wheat का production भी ट्रिपल क्या कह सकते हैं 4 times increase हो गया, while 4 to 5 times increase हो गया, while rice का production just double हो गया। तो इस प्रोग्राम के ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से इन दो एरिया में जबरदस्त ट्रांजिशन आया, जबरदस्त चेंज आया। अलॉन्ग विद दैट अगर हम टोटल फूड ग्रेन्स की बात करें, टोटल फूड ग्रेन्स हेयर मींस जो हम यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे थे, इन सबको कंबाइंडली बात करें तो इट वाज ओनली 82.4 मिलियन टन्स द टाइम व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ उस टाइम पे ये 82.4 मिलियन टन्स था, लेकिन 1991 तक ये इंक्रीज होकर के कहां पहुंच गया 176.4 मिलियन टन। सो इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज in the phase of green revolution which has increased the productivity and production of the country. Moving to the next, increase in farmer income, but obviously क्योंकि जब फार्मर्स को प्रोडक्शन मिलने लगा ज्यादा तो वो बेचने लगे ज्यादा तो उनकी इनकम आने लगी, तो जो लो इनकम ग्रुप ऑफ फार्मर्स थे उनको इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ और उनकी इनकम लेवल इंक्रीज हो गई। राइट हियर, तो लो इनकम रिच फार्मर्स इन सबको बहुत बेनिफिट हुआ इससे। सेकेंड, मार्केटेबल सरप्लस, प्रोडक्शन होने के बाद, सस्टेन प्रोडक्शन होने के बाद, यानी कि अपने लेवल का प्रोडक्शन, फूड सफिशिएंसी होने के बाद बचा हुआ प्रोडक्ट जो मार्केट में बाहर बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। इसकी डेफिनेशन अभी आपको यहाँ पे ब्लिंक होती हुई दिखाई दे जाएगी। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? द रिमेनिंग आउटपुट विच हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। राइट, तो जो बचा हुआ होता है जब फार्मर अपने कंजम्पशन से निकाल के बचा हुआ मार्केट में बेचते हैं, इनको एक्सपोर्ट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ट्रू, क्योंकि ये जो एरिया था ग्रीन रेवोल्यूशन का जिसमें HYVCs, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स एंड द मार्केट, इन सारी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन, इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटीज, यानी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए था, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके बनने से इनके साथ साथ इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। So with this green revolution program, employment also generated in the field of industry sector because the demand for chemical fertilizer has increased the construction or the development of industrial sector as well belonging to fertilizer. So fertilizer industry setup होने लगी, लोगों को काम मिलने लग गया, overall employment opportunities बढ़ने लग गई। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम ने इस फेज में बहुत ज्यादा फायदा किया। इसके साथ और 2-3 चीजें हैं जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। That is buffer stock. So with the use of green revolution program, buffer stock बढ़ गया क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था उसको हमने स्टोरेज करना शुरू किया। और स्टोरेज हम कब करते हैं? जब हमें फ्यूचर में अपनी सप्लाई क्रिएट करनी है या जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसके लिए जो सप्लाई क्रिएट करनी है, तो हम कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज इनकी तरफ भी बढ़ गए, तो यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। तो इसने एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यही आई कि इससे फूड बफर स्टॉक क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। किसमें हो गए? इन फूड ग्रेन्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ने लग गया कि हमारे पास कमर्शलाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जरूरी था पॉपुलेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग वो तो पूरा हुआ, और साथ में एक्स्ट्रा जो है उसे मार्केट में बेच के पैसा कमा लिया, तो इनकम भी जनरेट हुई और हम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन भी हो गए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें अपनी फूड सप्लाई के लिए भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो इशू, क्योंकि हमारा गोल था सेल्फ सफिशिएंसी, तो वो अचीव करने के लिए भी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से हमने कोशिश करी कि हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और हम हो भी गए थे। तो अगर हम इस चीजों को ध्यान में देखें और वापस से रिकॉल करें तो यहाँ पर भी जेम्स क्रिएट हो रहा है, यानी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ग्रोथ कैसे? प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो क्या होगा? इकोनॉमी की इनकम आएगी, तो ग्रोथ हुई, जीडीपी बढ़ गई, शेयर इन जीडीपी ऑल्सो इंक्रीज। फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इक्विटी। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के थ्रू उन फार्मर्स को टारगेट किया जो ज्यादा रिच नहीं थे, यानी उनको सब्सिडाइज रेट पर इन फर्टिलाइजर्स को, इन टेक्निक को प्रोवाइड किया सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस। तो इक्विटी अचीव करने की कोशिश की गई। मॉडर्नाइजेशन, एज टेक्निक इटसेल्फ सेज,
मॉडर्नाइजेशन हुआ क्योंकि हमने टेक्निक यूज करी, हमने मशीनरी यूज करी, इरिगेशन फैसिलिटीज लगाई, तो ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइजेशन हुआ एंड द सेल्फ रिलायंट यानी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। तो गोल्स यहाँ भी पूरे हुए फॉर 5 ईयर प्लान। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्रोग्राम आता है वो अपने साइड इफेक्ट भी लेकर के आता है। कोई भी पॉलिसी इकोनॉमी में बनती है उसके सक्सेस भी होते हैं और फेलियर्स भी होते हैं। लाइक इन द वे हम हमेशा देखते हैं कि कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करें, कभी अच्छे होते हैं कभी खराब भी होते हैं। तो इन एवरी वे जो भी प्रोग्राम्स बने, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, उनमें 2 साइड्स होते हैं। एवरी कॉइन हैज इट्स 2 साइड, head and tail, we all know, right? So here we have merits and demerits. So here we are going to discuss some shortcomings or some issues in green revolution program. तो वो issues क्या थे? Confined to food crops. इसका मेन प्रॉब्लम यही था, लाइक मैंने अभी यहाँ पे बताया, क्या दिख रहा है यहाँ पे? व्हीट, राइस, मिलेट, बार्ली, मेज, ऑयल सीड, पल्सेस, ग्रीन, ये सब क्या है? खाने के आइटम है। यानी कि इनसे सबसे ज्यादा यूज किस कारण से हो रहा है? सिर्फ फूड क्रॉप्स हैं। इनसे सिर्फ हम इनका यूज फॉर आर कंजम्पशन कर रहे हैं, फॉर आर सेल्फ सफिशिएंसी कर रहे हैं। यानी सिर्फ फूड प्रोडक्ट पे ही ये ज्यादा कंसंट्रेटेड थे। इन्होंने ना कॉटन, ना जूट, ना अदर क्रॉप्स पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से हम कमर्शलाइज्ड हो सकते थे, हम इनकम और बढ़ा सकते थे विथ एक्सपोर्ट। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम ने फूड क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दिया, कमर्शियल क्रॉप्स पे, कैश क्रॉप्स पे ध्यान नहीं दिया, जिससे इनकम के सोर्सेज ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनकम बढ़ी तो जरूर, बट जो टारगेट होना चाहिए था उतना नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन लिमिटेड टू फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट वाज लिमिटेड कवरेज एरिया। लिमिटेड कवरेज एरिया लाइक आई टोल्ड यू, कौन से स्टेट्स कवर किए? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी। इनके साथ साथ कुछ और स्टेट इसमें जोड़ तो लिए, महाराष्ट्र आ गया और कई सदर्न एरियाज कई सारे जोड़े, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री इन्होंने इस प्रोग्राम को फोकस नहीं किया। हमारी कंट्री में 26 स्टेट थे उस टाइम पर, 26 स्टेट्स। तो ये जो प्रोग्राम था वो हार्डली कुछ 10-15 स्टेट तक ही लिमिटेड था। बाकी स्टेट्स के साथ इस प्रोग्राम का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, बाकी स्टेट्स को इस प्रोग्राम से किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये प्रोग्राम लिमिटेड कवरेज एरिया पे था। कवरेज भी इन टर्म्स ऑफ स्टेट तो है, विद द क्रॉप्स ऑल्सो लाइक आई टोल्ड, फूड क्रॉप्स पे ही था, कैश क्रॉप पे फोकस नहीं था। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी अमंग फार्मर्स। लाइक आई टोल्ड यू, दिस टेक्निक वाज द यूज ऑफ मशीनरी एंड टूल्स। तो रिच फार्मर्स तो इजीली इसको यूज कर पा रहे थे, बट पुअर फार्मर्स इसको तभी यूज कर पाते थे जब गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे उनको प्रोवाइड करे। और गवर्नमेंट को सब्सिडीज देना ईच एंड एवरी टाइम टू द नीडी फार्मर्स बिकम सो अनसक्सेसफुल स्टोरी ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस वे, क्योंकि ज्यादा सब्सिडीज देना मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम आ नहीं रही, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जा रहा था, सब्सिडीज देना फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू में लाया जा रहा था इन द साइड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम ऐसा क्यों? क्योंकि इसी कारण से इसमें इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। रिच फार्मर्स ने इस टेक्निक को बहुत आराम से यूज किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, रिच और रिच हो गए, और पुअर फार्मर लिमिटेड ही यूज कर पाए, ज्यादा इसको ले नहीं पाए, ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको इस प्रोग्राम से मिल नहीं पाई, इसलिए वो रिमेन पुअर रह गए। सो इट हैज इंक्रीज inequality among poor. Next, ecological impact. Like I told you, this program was based on HYVCs and the chemical fertilizer, and the more use of chemical fertilizer create the what it has created. Imagine it, समझो इस बात को, सोचो, the more use of chemical fertilizer had adversely affected the productivity of land. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड खत्म हो गई, और जब हम लैंड में ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक फर्टाइल नहीं होती, बैरन हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, वो फर्टिलिटी उसकी नेचुरल खत्म हो जाती है। और केमिकल के यूज ज्यादा होने की वजह से, पानी का ज्यादा यूज होने की वजह से इनकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लैंड की खत्म होने लगती है। एंड ऑन दी अदर साइड, केमिकल जब हम यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो डेफिनेटली सम इकोलॉजिकल सिस्टम विल, इन्वायरमेंटल डैमेज विल ऑल्सो इंक्रीज।
लैंड सॉइल इरोजन भी होगा, लैंड की फर्टिलिटी भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर आता है हेल्थ इफेक्ट। अब हेल्थ इफेक्ट कैसे यहाँ आ गया? इट इज एज सिंपल, क्योंकि यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर लगे, दूसरा यहाँ पेस्टिसाइड्स लगे, और दोनों ही क्या है? केमिकल, और दोनों ही केस में इसको यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फार्मर्स, तो फार्मर्स के हेल्थ को भी इश्यूज होने लग गए। कई तो स्किन डिजीजेस इससे क्रिएट होने लग गई, कई बार तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी फार्मर्स में आने लग गई। तो इस प्रोग्राम ने फार्मर की हेल्थ को भी बहुत ड्रास्टिक वे में, और हम कहते हैं वर्स वे में अफेक्ट किया। स्किन इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कई सारे प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल fertilizers. So this is all about today's session. I hope you all have understood it very well. इस पूरे चार्ट को फटाफट से लिख लीजिए। ये जो पॉइंट्स मैंने मिटा दिए वो पहले थे, वीडियो को वहां पे वापस ले जाके पॉज करिए और डेटास को लिख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी इस पूरे चार्ट को लिखिए। अभी भी इसमें कई पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने रह गए, दैट आई विल कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। I hope you all have written. नहीं भी लिखा है तो pause the video and then write down all the requirements which you need. So that's all for today. We'll meet in next video. Till then, bye bye.